وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام اور میں ہوں سارا زمان. سمندری طوفان ہاروی تباہی پھیلانے کے بعد ایک مرتبہ پھر امریکی ریاستوں ٹیکساس اور لوئیزیانا کے ساحل سے ٹکرایا ہے. ہاروی سے نقصان اور امدادی کارروائیوں کی تازہ ترین اپڈیٹس سمیت کچھ شامل ہے آج کے شو میں. دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. ہیوسٹن میں تباہ کن سیلاب اور ریلیف کی کوششیں. واشنگٹن میں مذہبی رہنماؤں کی طرف سے برابری کا پیغام اجاگر کرنے کے لیے مارچ. اور سماجی انصاف کے حصول کی تگ و دو میں پاکستانی امریکن ٹرمپ دور میں خود کو کہاں دیکھ رہے ہیں. ہاروی اب تک امریکہ میں سب سے زیادہ بارش برسانے والا طوفان قرار دیا جا چکا ہے. امریکہ کے چوتھے بڑے شہر ہیوسٹن کی حکومت کا کہنا ہے کہ شہر میں سیلاب سے جس پیمانے پر نقصان ہوا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. طوفان کے باعث اب تک کم از کم 17 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی اہلیہ میلانیا ٹرمپ نے گزشتہ روز سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور شہر کی انتظامیہ اور متاثرین کی حوصلہ افزائی کی. وفاقی حکومت کس حد تک شہر کی مدد کر پاتی ہے یہ دیکھنا بھی باقی ہے، لیکن یہ صدر ٹرمپ کے دور کی پہلی بڑی قدرتی آفت ہے جس میں ان کے رد عمل کو پرکھا جائے گا. We won't say congratulations. We don't want to do that. We don't want to congratulate. We'll congratulate each other when it's all finished. But you have been terrific. This is historic. It's epic. What happened? But you know what? It happened in Texas, and Texas can handle anything. Thank you all, folks. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہیوسٹن سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ سیلیا مینڈوزا. سیلیا, what is the reaction to President Trump's visit? Was he able to boost people's morale? He gets a mixed reaction. We have seen that people, some of them are very happy that the federal government is engaged, that they're showing their support, or at least they're saying that they're going to support it. The signature of the executive order was a good thing for the people of Texas, allows the FEMA resources to start pouring in. However, some people don't feel that he is as genuine as they wanted to. That's something that a lady told us yesterday. She was in a line going inside a US dollar store, and she said, I can't really say much about the president. I'm worried about my house, and I don't think he really understands what we're going through. So it's a mixed reaction as he is in terms of his term, but they know that his presence means that they are paying attention. تو ہیوسٹن اور اس کے ارد گرد سیلاب سے متاثر علاقوں میں صدر ٹرمپ کے دورے کے بعد ملا جلا رد عمل دیکھنے میں سامنے آ رہا ہے. ایک طرف تو لوگوں نے اس معاملے میں اس حوالے سے خوشی کا اور اطمینان کا اظہار کیا کہ وفاقی حکومت ان کی اس مشکل میں ان کا ساتھ دے رہی ہے، اور جو فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی ہے اس کی جانب سے فنڈز کی فراہمی سے متعلق جو حکم نامہ صدر نے سائن کیا اس پہ بھی لوگوں نے پازیٹیو رد عمل ظاہر کیا. لیکن دوسری جانب لوگوں نے یہ ایسے خیالات کا بھی اظہار کیا کہ صدر اپنی کوششوں میں مخلص ان کو نظر نہیں آیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جو ذاتی مسائل ہیں اس وقت طوفان سے تباہی سے جو پیدا ہوئے ہیں شاید صدر ان کے ایکسٹینٹ کو، ان کی نوعیت کو سمجھتے نہیں ہیں. Celia, what's the biggest challenge right now for the authorities in Houston and surrounding areas? It's trying to keep the city safe, rescuing people, keeping all the refugees, all the victims in shelters. We're talking about overflown of the shelters. The convention center had 10 people. That's double of their capacity. The Toyota Center is opening their doors. That's where the Houston Rockets are based. And then the team is actually donating $10 million. But also keeping the people safe in their homes from looters. Last night they have... and people were not able to come out. It's a curfew from midnight to 5 a.m. and that probably will extend for the next of the week. And 14 people got arrested for trying to loot different locations. And that is a big challenge as people try to go back to their homes to try to get their life normal. تو اتھارٹیز کے لیے اس وقت لوگوں کا تحفظ ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے دو اعتبار سے. ایک تو وہ لوگ جو اس وقت شیلٹرز میں رہ رہے ہیں ان کا تحفظ، ان کی پرسنل سیفٹی یقینی بنانا، اور دوسری جانب شہر میں جو لوٹ کھسوٹ کے واقعات ہو رہے ہیں ان کو روکنا. 14 افراد کو زیر حراست لیا گیا ہے لوٹ کھسوٹ کے واقعات میں ملوث ہونے کی وجہ سے. تو دونوں اعتبار سے سیفٹی اس وقت شہر کی انتظامیہ کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے. سیلیا مینڈوزا ہمارے ساتھ تھیں ہیوسٹن سے. سیلیا, تھینک یو ویری مچ فار دس اپڈیٹ. تھینک یو.
सारा हमने ह्यूस्टन से ताज़ा तरीन अपडेट्स लीं और माहिरीन मौसमियात पेशन गोई कर रहे हैं कि ह्यूस्टन में 5 रोज़ से जारी तूफ़ानी बारिशें जल्द थम जाएंगी। बिल्कुल, लेकिन बेघर होने वाले हज़ारों मुतासरीन की मुश्किलात जल्द ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही, जिनके लिए इस वक्त बिस्तर मुहैया करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। पिछले जुम्मे जनूबी टेक्सास के साहिली इलाकों से टकराने वाले हार्वी नामी तूफान के बाद अभी तक बारिशें जारी हैं। मकामी लोग कई दिनों के बाद खुराक की तलाश में निकलने पर मजबूर हुए। सैलाबी पानी से अब तक तकरीबन 3,500 लोगों को बचाया गया है। मंगल के रोज पुलिस, फायर फाइटर्स और नेशनल गार्ड फोर्सेस फंसे हुए अफराद को निकालने की कोशिश करते रहे। शहरी भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। ये ऐसा हौलनाक है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ऐसे में सिर्फ एक सोच आप पर हावी हो जाती है, मैं अपने पड़ोसी की कैसे मदद कर सकता हूँ, बाकी सब पीछे चला जाता है। जुम्मे से लेकर अब तक 40 से 80 सेंटीमीटर तक बारिशें हुई हैं। नेशनल गार्ड ने मंगल के रोज कहा है कि उसके 30 हेलीकॉप्टर इमदादी कामों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन आइंदा दिनों में ये तादाद 100 तक हो सकती है। वो तमाम फौजी असासे मुहैया किए जा रहे हैं जो तूफान से नुकसान की बहाली की कोशिशों में शहरी हुकाम के काम आ सकते हैं। इमदादी एजेंसियां मुतासरा अफराद को खुराक, कपड़े और दूसरी ज़रूरी अशिया फराहम कर रही हैं। अमरीकी हुकाम का कहना है कि माजी में आने वाले किसी भी तूफान के मुकाबले में हार्वी तूफान से बहाली में बहुत वक्त लगेगा और इस पर ज़्यादा अखराजात आएंगे। ज़िलेतिसा हुक की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, उर्दू VOA। ह्यूस्टन के सैलाब मुतासरीन की मदद में मुसलमान कम्यूनिटी क्या किरदार अदा कर रही है, जानने के लिए हम बात करेंगे नसीमा चौधरी से, जो टेक्सास के शहर डैलस में इस्लामिक रिलीफ USA नामी फलाही तंजीम से मुंसलिक हैं। नसीमा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फ्राम डैलस। ये बताइए कि इस्लामिक रिलीफ USA की तरफ से ह्यूस्टन में मुतासर होने वाले लोगों को किस किस्म की मदद फराहम की जा रही है? ह्यूस्टन से जो लोग आ रहा है उसको तो सब कुछ हो चुके हैं ना, वो जो आ रहा है उसके पास कुछ भी नहीं है। सो हम यहाँ डालस में कन्वेंशन सेंटर में एक मेगा शेल्टर खुला है रेड क्रॉस के जरिए। इस्लामिक रिलीफ के 17 वॉलंटियर्स वहाँ मौजूद है। हम उसके लिए शावर की शावर रेडी किया है, जो आके शावर ले सके। टॉवल्स है, वह क्लिनिक भी है अगर किसी को कोई मेडिसिन चाहिए, और डॉक्टर्स भी है वह 24/7। हम वहाँ एक चाइल्ड केयर की भी खुला है टेम्पोररी, कि वो बच्चे लोग को वहाँ रखे और उसको जो फीमा और रेड क्रॉस के साथ जो एप्लीकेशन करना है वो टाइम दे सके। तो हमारे मेगा शेल्टर में हम 5,500 की बेड खुली है। वहाँ सब कुछ है, कपड़ा है, खाना भी है, मेडिसिन है, डायपर्स। हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि अगर उसको कुछ डोनेट करना है, वो कुछ खरीद ना करे, वो पैसा डोनेट करे तो अच्छा है, क्योंकि ये जो रह जाएगा ना वो तो कुछ काम पे नहीं आएंगे। बिल्कुल। और नसीमा, इन दोनों शहरों में मुसलमानों की बड़ी कम्युनिटी आबाद है, ह्यूस्टन में भी और डैलस में भी। डैलस में आने वाले मुतासरीन के बारे में आपने बताया कि वहाँ मेगा शेल्टर खुला है। ह्यूस्टन में भी इस्लामिक रिलीफ कुछ मदद कर रही है, आप लोग वहाँ जा रहे हैं ह्यूस्टन में लोगों की मदद के लिए? जी, हम जा रहे हैं वह डिजास्टर रिस्पॉन्स असेस करने के लिए। अभी तो हाईवे सब बंद है, वो हम ड्राइव नहीं कर सकते, लेकिन हम स्टैंड बाय है। जब भी वो कहेंगे कि हाँ तुम ये इट्स क्लियर टू गो, वी आर 17 वॉलंटियर्स मुस्लिम फ्रॉम ऑल अराउंड द अमेरिका। वी आर वेटिंग टू स्टैंड बाय टू गो एंड डू द डिजास्टर असेसमेंट इन ह्यूस्टन। सही, नसीमा चौधरी हमारे साथ थी डैलस टेक्सास से, इस्लामिक रिलीफ की एफर्ट्स के बारे में बता रही थी, जो ह्यूस्टन में और डैलस में आने वाले सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कोशिशें वो कर रहे हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका में तारकीन वतन की मुखालफत में उठने वाली आवाज़ें पाकिस्तानी अमेरिकन को क्या सोचने पर मजबूर कर रही हैं, इस पे हम बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। लेकिन ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला जारी है हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां महकमा मौसमियात ने पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में भी सैलाब की वार्निंग जारी की है। तफसीलात आप पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। इस वक्त देखते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ अहम खबरों की झलकियाँ वर्ल्ड व्यू में। मानसून की शदीद बारिशों से मुंबई के कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि बारिशों के बाइस हादसात में 2 बच्चों समेत कम से कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं।
सऊदी अरब में मनासिक हज की अदायगी का बाकायदा आगाज हो गया है। 17 लाख आज़मीन हज मिना पहुंच गए हैं, जहां वो रात क़याम के बाद कल अराफात रवाना होंगे, जहां वो हज का सबसे बड़ा फरीज़ा अदा करेंगे। शिमाली कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने किम जोंग उन का बयान जारी करते हुए कहा है कि शिमाली कोरिया की जानिब से जापानी फजाई हुदूद पार करके गुजरने वाला बैलिस्टिक मिसाइल अमरीका और जनूबी कोरिया की मुश्तरका जंगी मशकों के जवाब में दागा गया। अमेरिका की एक ग्रैंड जूरी ने तुर्क सदर के मई में दौरे अमेरिका के दौरान तुर्क सफारत खाने के बाहर मुजाहिरीन पर तशद्दुद के इल्जाम में 15 तुर्क सिक्योरिटी हुक्काम समेत 19 अफराद पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। अब्बा जैसे करोड़ों लोग जहां हर रोज ईमानदारी से काम पर लगे हों, चाहे वो दफ्तर में हो या खेतों में, सड़कें हों, बॉर्डर्स, खेल का मैदान या कोई इंटरनेशनल स्टेज, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। अमेरिका में इन दिनों सफ़ेद फार्म नस्ल परस्ती की हिमायत में उठने वाली आवाज़ों ने एक बार फिर उस दौर की याद ताज़ा कर दी है जब यहाँ स्याह फार्म शहरियों को मसावी हुकूक के लिए कई सालों तक ज़ोरदार मुहिम चलाना पड़ी थी। और आज अमेरिका में सिर्फ स्याह फार्म ही नहीं, हर रंग व नस्ल के लोग नस्ल परस्ती की मुखालफत में सड़कों पर निकल रहे हैं। हाल ही में वाशिंगटन में मजहबी रहनुमाओं ने एक रैली निकाली जिसमें मौजूदा हालात को देखते हुए इंसाफ और बराबरी का पैगाम उजागर किया गया। आइए देखते हैं। इनका मानना है कि खुदा दुआएं सुनता है और ये मार्च इंसाफ के लिए एक दुआ है। घुटनों पर बैठकर दुआ करने की बजाय अपने पैरों पर चलकर मार्च के शुरका ने नस्ल परस्ती, यहूद दुश्मनी और इम्तियाजी सलूक के खात्मे के लिए दुआ की। ये सिर्फ स्याह फार्मों का मसला नहीं, ये यहूदियों का मसला भी है। ये हम सब के लिए मसला है क्योंकि ये ग्रुप हमारी शनाख्त से मुतालिक हमारी ज़ात के एक हिस्से को निशाना बना रहे हैं। इन ग्रुप से कैथरीन की मुराद वर्जीनिया के शहर चार्ल्सविल में होने वाला जानलेवा वाक़या है। इस वाक़े में सफेद फार्म इंतहा परस्तों और दूसरे शिद्दत पसंदों की जानिब से की गई रैली में खुल्लम खुल्ला नफरत अंगेज तकारीर की गयी। एक सफेद फार्म इंतहा पसंद ने रैली की मुखालिफत करने वाले एक ग्रुप पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे एक खातून हलाक और 19 अफराद जख्मी हो गए। बहुत से लोगों की राय में इस वाक़े ने अमेरिका को एक कदम पीछे धकेल दिया और मुआशरा इस वक्त खतरनाक हद तक तकसीम का शिकार है। रेवरेंड जोआन हिल्टन ने अपना डॉक्टरेट का थीसिस मजहबी रसूमात में समाजी इंसाफ की अहमियत पर लिखा। उनका कहना है कि मजहबी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है कि वो इस सबक को दूसरों को पढ़ाएं और इसकी तशहीर करें। लोग सो चुके हैं, वो समझते हैं कि नस्ल परस्ती का खात्मा हो चुका है, लेकिन इंतहा पसंदी बस छुपी हुई थी, दबी हुई थी, लेकिन इस नए सदर के साथ ये बाहर आ गई है। मुझे नहीं पता कि इसका एजेंडा क्या है, लेकिन ये ऐसा एजेंडा है जो इंसाफ को फरोग नहीं देता। मार्च ने रास्ते में पहले से किसी मंसूबे के बगैर पेंसिल्वेनिया एवेन्यू पर कायम ट्रंप इंटरनेशनल होटल के सामने रुककर दुआ की। बहुत से लोग 1960 की दहाई में सिविल राइट्स के हसूल के लिए इसी रास्ते से गुजर चुके हैं और अब वो नई नस्ल के साथ खड़े हैं। जब हम इस मुल्क में नाइंसाफी को देखते हैं तो हमें खड़े होना पड़ता है और आवाज उठानी होती है। ये मार्च अमरीकी महकमा इंसाफ के सामने खत्म हुआ। ट्रंप इंतजामिया ने इस मार्च पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया। कैरोलिन परसूटी के साथ वर्दा खलील, उर्दू VOA। जहां एक तरफ बहुत से अमरीकी नस्ल परस्ती के खुल्लम खुला इजहार से परेशान हैं, वहीं गुज़िश्ता साल डेमोक्रेटिक पार्टी की कन्वेंशन में मुसलमान अमरीकियों के किरदार पर अपनी तकरीर से शोहरत पाने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन खिज़र खान कहते हैं कि उन्हें इन हालात में उम्मीद की एक किरण भी नज़र आ रही है। मेरे तीनों बच्चे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया जो कि शार्लट्सविल में है, इसके तालिब इल्म रहे हैं, यहाँ से ग्रेजुएट हुए हैं। तो हमारे लिए शार्लट्सविल अपना घर है। अमेरिका का
आज़ादी का अहदनामा लिखा वो इस शहर में लिखा गया है। हमने कभी इस किस्म का दंगा फसाद यहाँ नहीं देखा। हमें अफसोस कि यहाँ पे ये दंगा फसाद हुआ, लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि उस दंगे फसाद के बाद जिस तरह से शहर और शहर के तमाम स्टूडेंट्स, शहर के तमाम शहरी इकट्ठे हुए हैं, वो इंतहाई पुरुमीद मौका बना हमारे लिए। जब इजहार ख्याल की आज़ादी की बहस चल रही थी कि इसको अमेरिका के कानून में डाला जाए, अगर आप उस वक्त की उस बहस को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन हादसात की तवक्को की गई थी कि ऐसा मौका भी आएगा जब इजहार ख्याल की आज़ादी को चैलेंज होगा, कि इम्तहान लिया जाएगा उसकी वुसअत का। इस मुल्क को, इस कौम को वरगलाया गया। ट्रंप जैसे कैंडिडेट ने वरगलाया इस कौम को। मैं ये करूँगा, मैं दीवार बनाऊँगा, मैं मुसलमानों को फेंक दूँगा निकाल के, मैं ये कर दूँगा, मैं जजेस ख़राब हैं, हिस्पैनिक्स ख़राब लोग हैं, मैं नहीं आने दूँगा। बहरहाल इस बात से मायूसी हुई, लेकिन उसके बाद से जो वाक़यात हो रहे हैं उससे मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कौम अपने उसूलों पर पूरी उतरेगी। कोई चीज़ पे भी अमल नहीं हो सका। 6 महीने गुजर चुके हैं। कांग्रेस ने हर चीज़ को रिजेक्ट किया है। हालांकि कांग्रेस में ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है, लेकिन रिजेक्शन हुई है। गुज़िश्ता साल रिपब्लिकन पार्टी के सालाना कन्वेंशन में दुआया कलमात अदा करने वाले पाकिस्तानी अमेरिकन साजिद तारड़ इस वक्त हमारे साथ हैं। ये रिपब्लिकन पार्टी की वो कन्वेंशन थी जिसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कैंडिडेट के तौर पे अपना नॉमिनेट किया। आपने उस मौके पे मुस्लिम्स फॉर ट्रंप की बुनियाद भी रखी। आप सदर ट्रंप की एडवाइजरी काउंसिल जो मजहबी अमूर पे है उसके रुकन भी हैं। अब जबकि अमेरिका में सफ़ेद फार्म नस्ल परस्ती की हिमायत में खुल के मार्चेस भी हो रही हैं, लोग मज़ामीन लिख रहे हैं वेबसाइट्स पे, एक पाकिस्तानी की हैसियत से क्या आपके कोई ख़दशात हैं, कोई फ़िक्र है आपको अपने माशरे में अपनी पोजीशन के बारे में? देखिए, मुझे वाकई ख़दशात हैं और मैं इसको कंक्लूड इस तरीके से करूँगा कि पिछले 8 साल अमेरिकन हिस्ट्री में फर्स्ट स्याह फार्म ब्लैक प्रेसिडेंट आए और 8 सालों में बजाय रेशल चीज़ों को कंट्रोल करने में या कम करने में इन चीज़ों को ज़्यादा उभर के आगे आई हैं। उसी का रिज़ल्ट है पिछले 8 साल की वीक पॉलिसीज़। आपने खुद देखा होगा डैलस में 6 पुलिस वाले मर्डर हुए उस दौर में, फर्गुसन जला, शार्लेट जला, बाल्टीमोर जला। तो से सभी कुछ एक 8 साल में सोसाइटी को लॉलेस बिहेवियर की तरफ लेके जाना, सोशलिज्म की तरफ पुश करना, ख़ासकर यंगर जनरेशन को इंटाइटलमेंट्स के वादे करना, ये सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं, तभी बच्चे सड़कों पे निकल रहे हैं। और मेरे ख्याल में ठीक हो जाएगा एक 6 महीने साल तक इंशाल्लाह इन चीज़ों को। लेकिन कंसर्न, इट इज़ कंसर्न लॉलेस बिहेवियर जब पूरे अमेरिका में एक वबा है। अल्टीमेटली वी आर अमेरिकन, वी आर मुस्लिम्स, और जब भी रेशल चीज़ें होती हैं तो अल्टीमेटली वी आर माइनॉरिटी, वी हैव कंसर्न्स। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब हैव सेड सेवरल टाइम्स कि ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल द अमेरिकन्स रिगार्डलेस ऑफ रेस एंड रिलीजन। तो पिछले 7 महीने में सदर ट्रंप को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मौजूदा हालात के बाद उनकी मुशावरती काउंसिल के लोगों ने इस्तीफ़े दिए, वो दोनों काउंसिल्स उनको तहलील करनी पड़ी। सदर जहाँ जाते हैं एहतजाज होता है। फिनिक्स में जब वो गए अपनी रैली के लिए, वहाँ पर एहतजाज हुआ बहुत बड़ा। तो एक तारिक वतन के तौर पर, एक मुसलमान के तौर पर आप क्या तवक्को कर रहे थे सदर ट्रंप की लीडरशिप से, और क्या वो तवक्कुआत पूरी हो रही हैं? देखिए, तवक्कुआत पूरी हो रही हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ सारी ज़िंदगी। मेरे ख्याल में जमहूरियत अमेरिका में रिफॉर्म होने जा रही है, और ना सिर्फ अमेरिका में, ये एक नया एक ट्रेंड है जिसका ब्रेक्सिट भी हिस्सा था, इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस वो भी हिस्सा था, क्योंकि लोग ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन से तंग आ चुके थे, वादे करना और डिलीवर कुछ नहीं करना। डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में कहा जाता है अभी कंपेनिंग मोड में है, क्योंकि वो डिलीवर करना चाहते हैं जो मैंडेट लेकर आए थे। ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। जो लोग सियासतदान, इब्ने सियासतदान और जो 30-35 साल इस प्रोफेशन जिसको बना लेते हैं जमहूरियत को, दिस इज़ गोइंग टू बी रिफॉर्म्ड मेरे ख्याल में। डोनाल्ड ट्रंप साहब डिलीवर कर रहे हैं। बेस जिन्होंने उनको वोट दिए थे अभी उनके साथ हैं। और ये एहतजाज जो आप कह रहे हैं, पिछले 8 साल से रिपब्लिकन पार्टी अपोजिशन में थी, अभी तक रोलिंग मोड में नहीं आई। रोलिंग मोड में अभी आएंगे मोड में, लेकिन
ख़ास कर प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप इज़ वेरी यूनिक, जहाँ के उनको रिपब्लिकन पार्टी की कुछ पॉकेट्स में से भी उनको रेजिस्टेंस आती है, लेकिन इट विल बी फाइन। देखें 8 साल एक चीज़ को जब इतना उछाला जाए तो वो 6 महीने साल में तो उसके अभी डस्ट विल सेटल डाउन विद इन अ ईयर। पार्टी पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, आपने सारा इल्ज़ाम जो है वो सदर ओबामा की पॉलिसीज़ पे डाल दिया, जबकि अगर पोल्स की तरफ देखा जाए इस वक्त तो सदर ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स 34% हैं। वो किसी भी नए प्रेसिडेंट से कम उनकी अप्रूवल रेटिंग्स हैं। जो पोल्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि सदर लोगों को तकसीम करें। इस तरह के रिजल्ट्स प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में नहीं आए थे। लेकिन मैं पार्टी पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाहती, मैं आपके जो ज़ाती पॉलिटिक्स हैं, जिस मकाम पे आप इस वक्त अपने आप को देखते हैं माशरे में, उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। राइट और लेफ़्ट के दरमियान खलीज बहुत बढ़ चुकी है अमेरिका में। जिस तरह आपने ही फ़ौरन प्रेसिडेंट ओबामा के 8 साल को क्रिटिसाइज़ किया, उसी तरह लोग प्रेसिडेंट ट्रंप के 6 महीनों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। राइट और लेफ़्ट के दरमियान जो खलीज है, एक शहरी के तौर पे आप उसको किस तरह से, आपके ख्याल में किस तरह से उसको अबूर किया जा सकता है, लोगों को करीब कैसे लाया जा सकता है? देखें, सबसे पहले तो मैं वही पोल्स की बात करूँगा। पोल्स अब ज़ाती तौर पे पूछें तो वो CNN और दूसरा लिबरल न्यूज़ आउटलेट्स के अब खेल बन चुका है। जो मर्जी होती है उनको पोल बना लेते हैं मेरे ख्याल में। सबसे बड़ी व्यूअरशिप अमेरिका में फॉक्स न्यूज़ की है, जो कि कंजर्वेटिव न्यूज़। लेकिन आप ये देखें कि यही पोल एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब के इलेक्शन से कह रहे थे कि दिस ब्लू वॉल इज नॉन पेनिट्रेटेबल, ये जीत नहीं सकेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते। लेकिन पोल्स पे खलीज इसको देखें, अब इसमें टाइम लगेगा। अब देखें खलीज, सबसे पहले तो बात यह है, आज ह्यूस्टन में ट्रंप साहब गए हैं, जो कि वेरी यूनिक। पिछले प्रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग कैटरीना और जॉर्ज बुश और ओबामा साहब इतनी फ़ौरन जल्दी नहीं जाते थे, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। खलीज होने में टाइम लगेगा दूर, क्योंकि आपको मैं पहले जिस तरह आपको बता रहा था, 8 साल मुसलसल रॉन्ग चीज़ें फीड होगी। आप एक वोटर हैं, आप जब किसी दूसरी पार्टी के वोटर से मिलते हैं, आपके ख्याल में एट द एंड ऑफ द डे तो गोल सबका यही है ना कि मुल्क तरक्की करे, क्योंकि जब सदर ट्रंप इलेक्ट हुए तो प्रेसिडेंट ओबामा का भी यही कहना था कि अब वो हमारे सदर हैं और उनको सपोर्ट करना हमारा काम होगा। आप मुझे बहैसियत एक वोटर बताइए। मैं बहैसियत वोटर, देखें, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। जिस तरह मैं पहले अर्ज कर रहा था आपको कि 6 महीने से साल लगेंगे इस पीरियड को, लोग एडजस्ट हो जाएंगे। एडजस्टमेंट, जब भी एडजस्टमेंट होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, और जो पिछले 8 सालों में प्रोपेगेंडा होता रहा, अल्टीमेटली उसको डिफ्यूज़ होने में टाइम लगेगा, और रिपब्लिकन पार्टी को पता चलेगा कि हमने रूल किस तरह करना है, हमने लेजिस्लेशन किस तरह करनी है, व्हाट इज़ गुड फॉर द एरिया। क्या करना चाहिए सदर ट्रंप को? ये जो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब इज डूइंग एवरीथिंग व्हाटएवर ही कैन। अब जिस तरह वो देखें कि वो सब कुछ करते हैं, लेकिन क्रिटिक्स ऑलवेज विल बी क्रिटिक्स। अब उनकी शार्लट्सविल पे उन्होंने एक लफ्ज़ उन्होंने कई दफ़ा रिपीट किया, लेकिन मीडिया उसको सुनना नहीं चाहता। कभी कहते हैं 1 दिन लेट उन्होंने कहा, कभी कहते हैं इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया। हालांकि मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पर पूछें, शार्लट्सविल में ज़्यादती हुई है, क्योंकि जहाँ ब्लैक लाइफ मैटर और दूसरे जो लोग आए थे उनके पास परमिट नहीं था, और it was रिपब्लिकन डेमोक्रेट, वहाँ पर डेमोक्रेट गवर्नर थे, और पुलिस, उन्होंने चीज़ों को अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया। लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब व्हाटएवर ही इज डूइंग द राइट, व्हाटएवर अ प्रेसिडेंट शुड डू, डिलीवर हिज मैंडेट, एंड ही इज डिलीवरिंग हिज मैंडेट। शुक्रिया साजिद तारिक साहब, हमें वक्त देने के लिए, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सारा, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी की कुछ बात हो जाए आज शो में जाते जाते। दुनिया में सबसे ज़्यादा रोबोट्स किस मुल्क में पाए जाते हैं? जापान में। और यहाँ पे बहुत सी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं जिनमें रोबोट्स अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जैसे इस होटल में चेक इन करने के लिए अब किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, रोबोट्स आने वालों को खुशामदीद कहते हैं और सामान कमरे तक छोड़ के आते हैं। फिर ये फैक्ट्री आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पे, यहाँ हर 1 मिनट में 1500 कैंस को बॉक्स में पैक करने की जिम्मेदारी भी रोबोट्स पर है। वजह यह है कि जापान में आबादी सुस्त रफ्तार से बढ़ रही है, इसलिए काम करने वालों की तलाश में कारोबार अब रोबोट्स की तरफ देख रहे हैं। लेकिन ज़बरदस्त बात यह है कि रोबोट नौकरी ले भी ले तब भी तनख्वाह इंसान को ही मिलती है। यानी जापान में जॉब सेफ्टी अभी भी है। बिल्कुल, दैट इज गुड न्यूज़ फॉर द जापानीज। ये था हमारा आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए ये facebook.com/VOA उर्दू पर, जहां आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जबकि हमसे राब्ते के लिए ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
wearing your heart on your sleeve is taking on a whole new meaning at the 2016 pilgrimage to Las Vegas for Gadget Geeks, CES. Wearable health tracking devices broke into full stride, winning much more than a bit of flashy floor space and heated hype. An estimated 500 million people worldwide apparently now feel the need to copiously log their steps, leaps, strokes, and spins while recording their breathing, heart rate, blood pressure, sleep patterns, and food intake, just to name a few. And then, of course, brag about it online. Peter Nielsen is CEO of a Denver startup called Femtoscale. Seems like there's no limit to the amount of data people want to get, right? Would you agree with that? What's going on? Within wearables are blowing up. That's half of CES this year. Looks like it's wearable, trying to compute everything. Nielsen's company is developing a portable and eventually wearable sensor that can provide real-time readings of air quality by weighing airborne particles much too small to see. The scale is just barely visible. I needed a jeweler's magnifying glass to see it. Femtoscale was among the nearly 24 small businesses supported by the National Science Foundation displaying their wares in the Eureka Park section of CES. Eureka Park was co-founded by NSF in 2012 as a way to showcase the bleeding-edge technology it is helping along. Stephen Konsek is director of the Small Business Innovation Research Program at NSF. Our program funds small businesses, mainly startup companies that are developing game-changing technologies that have big commercial upside. This year, wearables dominated Eureka Park, thanks to a perfect storm of technological advances. Sensors are rapidly shrinking in size and cost, communications between devices has improved, and so has battery life. And of course, none of it could happen without the ubiquity of smartphones, our mobile switchboard for all things technological. San Jose-based Stradio has shrunk a spectrometer down to palm size. The device shines a bright light on food and medicine to determine if they are what they purport to be. In this demonstration, CEO Jae-Hyung Lee compared counterfeit, generic, and genuine Viagra to the fingerprint-like spectroscopic pattern of the real McCoy. It was instantly obvious which were the imposters. So far, people were just interested in them themselves, right? But they now want to know more about what they're eating. They want to know what they're buying. They want to know what's going on around them, right? Clearly, exercise and nutrition tracking alone are not enough to satisfy entrepreneurs or consumers in the health tracking space. Kaustubh Kale is CEO of a Boca Raton startup called Eventusoft. They are developing a wearable heart monitor and electrocardiogram. It's not a pushback anymore. People already wear a Fitbit or any of these other wearables, so they're already accepting of these new technologies. And now, as the technology improves, you can now push it into the medical grade domain. The wearable industry is all about heart and soul, too. Salt Lake City-based Veristride is developing highly sensorized insoles. So this version right here has two big square sensors. These are the pressure sensors. And then underneath there is where we put the electronics. So CEO and founder Stacy Bamberg got the idea as a way to help amputees and stroke patients in physical therapy. The real-time data provides visual or auditory cues to help them walk with better balance. But Stacy believes as the insoles get thinner and more comfortable, the real-time feedback might catch on with runners. What's the future going to be then? Are we just going to be, sensors from head to toe? I think the future is this stuff is built into our clothes. We don't have to think about it. It connects, it sends it to our app wirelessly. We're able to get the information we want without feeling like we got something badged onto us. Almost all the companies that are here have gone on and raised now private capital based on some of the work that we've helped them do. And maybe one day this seed money will yield a crop of better, more sophisticated sensors for us all to wear in good health. For Science Nation, I'm Miles O'Brien.